اور میرے چیزوں خداوند خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں اس ساری محبت کے لیے جو ہم سے کرتا اور ہمیں تمام تر معاملات کے اندر زندگی کے اندر اور تمام برکتوں کے اندر معمور کرتا رہتا ہے۔ اور جب دعا کے لیے کسی بہن کو بھائی کو کہا جائے کسی مقصد کے لیے تو وہ اپنی آواز کو خدا کی حضوری میں بلند کرے تاکہ دوسروں کو سننے کا موقع ملے، اور یا تو وہ اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر دلیری سے دعا کرے، اور اسی دعا کے وسیلہ سے ہی سارے جس وسیلہ سے جس مقصد کے لیے ہم دعا کر رہے ہوتے ہیں اس مقصد کو تقویت ملتی ہے۔ ہاللیلویہ ہاللیلویہ۔ آئیں کلام اقدس میں سے آج ہم اپنے لیے سیکھتے ہیں پولس رسول کا کرنتھس کی کلیسیا کے نام پہلا خط اور 3 باب اس کی 4 آیت سے لے کر 9 آیت تک تلاوت کو سنیں۔ 4 سے لے کر ہاں جی خداوند کے پوتر کلام میں مرقوم ہے، اس لیے کہ جب ایک کہتا ہے میں پولس کا ہوں اور دوسرا کہتا ہے میں اپولوس کا ہوں، تو کیا تم انسان نہ ہوئے؟ اپولوس کیا چیز ہے اور پولس کیا ہے؟ خادم جن کے وسیلہ سے تم ایمان لائے، اور ہر ایک کی وہ حیثیت ہے جو خداوند نے اسے بخشی۔ میں نے درخت لگایا اور اپولوس نے پانی دیا، مگر بڑھایا خدا نے۔ بس نہ لگانے والا کچھ چیز ہے نہ پانی دینے والا، مگر خدا جو بڑھانے والا ہے۔ لگانے والا اور پانی دینے والا دونوں ایک ہیں، لیکن ہر ایک اپنا اجر اپنی محنت کے موافق پائے گا، کیونکہ ہم خدا کے ساتھ کام کرنے والے ہیں۔ تم خدا کی کھیتی اور خدا کی امانت ہو۔ آمین۔ آنکھیں بند کریں۔ کلام اقدس کے پڑھے سنے سمجھے کھولے اور غور کیے جانے پر خدا کی برکت ہے۔ میرے عزیزو، خدا کا بندہ اس بحث کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے جو کلیسیا کے اندر اور شاگردوں کے اندر چل رہی ہے، اور جو بنسبت بن رہی ہے۔ کوئی جب پولس سکھاتا ہے اور جب اپولوس بھی سکھاتا ہے، دونوں کلام کو کھول کر بیان کرتے ہیں، اور پھر جب ان کا نام منسوب کر کے کہتے ہیں کہ میں نے اس سے سیکھا ہے، تو اس بحث کو ختم کرنے کے لیے یہاں پر خدا کا بندہ بیان کرتا ہے کہ کوئی تو اس کا نام لیتا ہے اور کوئی میرا نام لکھتا ہے۔ اگر تم دونوں کا نام لیتے ہو تو کیا تم انسان نہ ہوئے؟ نہ اپولوس کوئی چیز ہے نہ پولس کوئی چیز ہے۔ اب یہاں پر ہم سیکھتے ہیں کہ خادمین جب ہم ان کے کلام کو سن کر جو خدا ان کے وسیلہ سے کرتا ہے، ان باتوں کو سن کر، ان کلام کے بھیدوں کو سن کر ہم ان کو آئیڈیل بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے تو فلاں خادم کا ہی کلام بس اچھا لگتا ہے، اور میں نے تو فلاں خادم کا کلام سنا تو اس کی وجہ سے میرے دل پر چوٹ لگی ہے اور میں اسی کی وجہ سے توبہ کروں گا اور بپتسمہ لوں گا۔ اور پھر جب وہ کلام جو ان کے منہ سے نکلتا ہوتا ہے، خواہ وہ ہم کسی کے بھی وسیلہ سے سنتے ہیں، اور جب سن کر ایمان لے آتے ہیں اور ہماری زندگی بدلتی ہے، تو وہ کلام اس بندے کی طرف سے نہیں ہوتا جس کا کلام سن کر، جس نے پکارا تو آپ نے سن کر اپنی زندگی کو بدلا۔ اور خدا کا بندہ کہتا ہے کہ نہ تو اپولوس جس کی کلام کو سن کر تم لوگ جو ادھر کھڑے ہو تم لوگوں نے ایمان لایا، نہ تو وہ کوئی چیز ہے، اور نہ میں پولس جو میرے کلام کو سن کر بدلے ہو، توبہ کیا ہے، خدا کے پاس ہے، نہ میں کوئی چیز ہوں۔ در حقیقت وہ کلام جو خدا کا ہے، جو خدا کی وجہ سے اس کے بندوں کی طرف آتا ہے، وہ اپنے لبوں کو کھول کر وہ بیان کرتے ہیں، وہی سب کچھ ہے۔ اور وہ ہر ایک کی وہ حیثیت ہے جو خداوند نے اسے بخشی۔ میں نے درخت گایا اور اپولوس نے پانی دیا، مگر بڑھایا خدا نے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ
बहुत सारे बहन भाई किसी एक खादम से बैप्टाइज होते हैं, बपतिस्मा लेते हैं, और फिर उसको मुसलसल सुनने का मौका और उसकी रफाकत में रहने का मौका नहीं मिलता। फिर क्या होता है कि हम किसी खादम के साथ मिलकर कलाम को सीखते हैं, और जिसके साथ हम कलाम सीखते हैं उससे हमने बपतिस्मा नहीं लिया होगा, चोट जो लगी है दिल पर वो दूसरे खादम की वजह से लिखी है, लेकिन कलाम हम सुन रहे होते हैं। तो यहाँ पर खुदा का बंदा बयान करता है कि मैंने तो दरख्त लगाया लेकिन पानी किसने दिया है? अपुल्लोस ने। मैं तो तुम्हें कलाम सुनाकर तौबा करने के वसीला से बपतिस्मा देकर चला गया हूं मुनादी के लिए, लेकिन पीछे जो तुम्हें तरबियत देता रहा वो अपुल्लोस ही है। लेकिन इन दोनों को खुदा के ज़ुरी में अगर देखा जाए तो दोनों एक ही हैं, लेकिन उनको बढ़ाने वाला, पानी देने वाला और उनको तंदुरुस्त और तवाना करने वाला और तकवीयत देने वाला और ताकत बख्शने वाला खुदा है। अब मेरे जीजो, लिखा हुआ है लगाने वाला और पानी देने वाला दोनों एक ही हैं, लेकिन हर एक अपना अजर अपनी मेहनत के मुआफिक पाएगा, क्योंकि हम खुदा के साथ काम करने वाले हैं। तुम खुदा की खेती और खुदा की इमारत हो। आज हम इस 19वीं आयत के मुताबिक सीखेंगे, क्योंकि हम खुदा के साथ काम करने वाले हैं, तुम खुदा की खेती और खुदा की इमारत हो। अब हम देखें, जब हमने शुरू किया था तो उस वक्त के अंदर हम बड़े पुरजोश थे, हमारे अंदर जोश भी था, आज भी है। लेकिन कुछ बहन भाई ऐसे हैं जिनको मैं पिछले दिनों से देख रहा हूं कि वो ऐसे, उनके चेहरे बुझे हुए हैं, ऐसे उनके चेहरे उदास हैं, जैसे पता नहीं कोई उलझन बनी हुई है। लेकिन खुदा का बंदा कहता है कि हम खुदा के साथ काम करने वाले हैं, हम खुदा के साथ काम कर रहे हैं और खुदा के साथ काम करने वाले हैं। और ये जो इमारत है हमारी वजह से, ये खुदा की बदौलत बढ़ रही है, और इसके ऊपर खुदा के जोर के और मसा के और उसकी हजूरी के रद्दे और ईंटें लग रही हैं। बाज़ दफा हम इसलिए भी उदास और मुरझा जाते हैं, खुदा की हजूरी में आते हुए भी, खुदा के पास आते हुए दुआ भी कर लेते हैं, परस्तिश भी कर लेते हैं, कलाम भी सुन लेते हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर एक मुरझायापन रहता है और हम फोकस नहीं कर पाते, हम परेशान रहते हैं, उदास रहते हैं, और देखने में यूं मालूम होता है पता नहीं कोई मसला हुआ है। लेकिन उसकी वजह यह होती है कि हमने बड़ी जल्दी ही बहुत सारी बड़ी बड़ी तवक्कुआत लगा ली थी। हम शुरू के अंदर हम देखते हैं सारे बहन भाई बहुत जोरावर तरीके से, पुरजोश तरीके से बढ़ रहे थे। और फिर क्या हुआ कि पिछले दिनों के अंदर मैंने देखा कि बहुत सारी ऐसी मुरझायापन जो है वो चेहरों के ऊपर आया और उनको महसूस करने का मौका मिला। तो यहाँ पर कलाम अक़दस ये बयान करता है, क्योंकि हम खुदा के साथ काम करने वाले हैं, तुम खुदा की खेती और खुदा की इमारत हो। 10वीं आयत के अंदर लिखा हुआ, मैंने उस तौफीक के मुआफिक जो खुदा ने मुझे बख्शी दनाम अमार की तरह नींव रखी और दूसरा उस पर इमारत उठाता है। अब इब्तिदा के अंदर जो जो कलाम हमें सुनाया गया, जो जो हमने कलाम सीखा है, अब क्या होता है कि नींव डाली गई है और उसकी बेस रखी गई है, और फिर क्या होता है कि उस पर दूसरा कोई रद्दा रखता है। कभी भाई आसफ को रद्दा रखने का मौका मिलता है, कभी भाई शमसून को मौका मिल जाता है कि वो ऊपर सीमेंट वगैरह लगाए और ईंटें रखे, और फिर कभी जिसने नींव रखी है वो भी उस सारे मामले को फिर करने की कोशिश करते हैं। तो आस्ता आस्ता से क्या होता है, ये इमारत जो हम मसीह में यहाँ काम करने वाले हैं, ये इमारत तमीर होती रहती है। इसकी तमीर में कभी कोई कमी बेशी नहीं आती और तखीर नहीं होती, और वो उसके अंदर कोई भी छुट्टी नहीं होती, और वो मुसलसल तमीर होती रहती है और मुसलसल वो इमारत बढ़ती रहती है। और लिखा है, बस हर एक खबरदार रहे कि वो कैसी इमारत उठाता है। अब सोचने की बात यह है और गौर करने की बात यह है कि हम कैसी इमारत उठाते हैं और कैसी इमारत की जो दीवार हम बना रहे हैं वो कैसी है, क्योंकि सिवा उस नींव के जो पड़ी हुई है और वो यीशु मसीह है, कोई शख्स दूसरी नींव नहीं रख सकता। और अगर कोई उस पर सोना चांदी या बेशकीमत पत्थरों या लकड़ी या घास फूस
से रद्दा रखे तो उसका काम ज़ाहिर हो जाएगा। अब मेरे जीजो, हम कलाम में सीखते हैं कि हम जब खुदा के काम में और उसकी खिदमत में और उसके कलाम में बढ़ते चले जा रहे हैं, इमारत बनती चली जा रही है, सीखते जा रहे हैं, तो अब हमें क्या करना है कि बाज़ दफ़ा हम एक ही बात को करते करते उकता जाते हैं। और फिर शुरू में तो हम बड़े पुरजोश थे। बचपन के अंदर जब साइकिल चलाने का मुझे मौका मिला तो नई मुझे अभी मौका मिला, मैंने उसको लिया और मैं कभी गिरता, कभी उठता, कभी चोटें लगती, लेकिन बड़ा एक्साइटेड था कि मैं उसको चलाऊं और उसको चलाना सीख जाऊं, मुझे उसकी पूरी महारत आ जाए। और फिर क्या हुआ कि जब पूरी महारत आई तो इतना जोश था, इतना एक्साइटेड रहता था 24 घंटे कि कब छुट्टी हो स्कूल से और जो पैसे मुझे खाने के लिए मिले हैं वो मैं जाकर साइकिल किराए पर लूं और उसको चलाऊं, क्योंकि जोश था। और आस्ता आस्ता ये क्या हुआ कि आस्ता आस्ता वो जब उसको शौक को पूरा किया, चलाते रहे तो फिर थक आकर कहा, उससे उकता गया और कहा कि ये काम तो करना ही नहीं। आस्ता आस्ता जब उसको इतने देर करते रहे, इतनी देर किया, चलाते रहे, तो फिर एक वक्त ऐसा है कि अब उसको देखने की भी, अब उसको देखें तो उलझन होती है कि ये साइकिल है, इसको चलाना ना पड़ जाए। क्योंकि जब हम नए तरीके से, पुरजोश तरीके से शुरू करते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता हम उम्मीदों को जो हमने लगाई होती हैं उनको देर लग जाती है और उनको पूरा करने में और पूरा होने में कुछ वक्त लग जाता है और हम अपने जोश को खो बैठते हैं और जोश कम कर देते हैं। और फिर इसके वसीला से अगर हम सीखें कलाम अक़दस में से रोमियो के खत के 15 बाब की 7 आयत के अंदर लिखा हुआ है, बस जिस तरह मसीह ने खुदा के जलाल के लिए तुमको अपने साथ शामिल कर लिया है, उसी तरह तुम भी एक दूसरे को शामिल कर लो। जिस तरह यीशु मसीह ने अपने जलाल में हम सबको, खावो जिनके गुनाह थोड़े थे या जिनके ज्यादा थे, जिनके गुनाह ज्यादा भारी थे या जिनके थोड़े हल्के थे, उन सब को एक तरफा एक ही हालत के अंदर अपने जलाल के अंदर शामिल करके उनको बख्शा और उनको धोया और उनको पाक साफ करके सबको एक ही साफ में खड़ा कर दिया। तो खुदा का बंदा कहता है कि तुम जैसे मसीह ने अपने जलाल के लिए तुमको अपने साथ शामिल कर लिया, उसी तरह तुम भी एक दूसरे को शामिल कर लो। एक दूसरे को ऐसे शामिल करो जैसे दीवार जब बनाई जाती है, नींव रखी जाती है, तो एक ईंट दूसरी ईंट का सहारा बनती है, एक ईंट दूसरी ईंट को मजबूत करती है और एक ईंट दूसरी ईंट के ऊपर जब लगती है तो मजबूती आती जाती है और उसके वसीला से एक मजबूत तर दीवार बन जाती है। और फिर खुदा का बंदा ये सिखाता है कि एक दूसरे को शामिल कर लो उसके अंदर, जिनका जोश अभी पूरा है, जिनका जोश अभी कम नहीं हुआ, जो पुरजोश हैं, जो जिस्मानी हालत के अंदर नहीं गए, जिनका जोश कम हो गया, उनको भी इसी जोश के अंदर शामिल कर लो ताकि एक साथ बढ़ो, एक साथ ईंटें लगती रहें और एक साथ दीवार बनती जाए। अब मेरे जीजों, इसी खत के, रोमियो के खत के 12वें बाब की 11वीं आयत को देखें तो वहां पर लिखा है, कोशिश में सुस्ती ना करो, रूहानी जोश में भरे रहो, खुदावंद की खिदमत करते रहो। क्या बताया गया? कोशिश में सुस्ती ना करो। अब अगर जोश में कमी आ गई है, कुछ रूहानियत में हम थोड़ा वीक हो गए हैं, उम्मीदें बर नहीं ला रही, उम्मीदें पूरी नहीं हो रही, तवक्कुआत नहीं पूरी हो रही, तो फिर थोड़ी कमजोरी आ जाती है रूहानी हालत के अंदर। लेकिन उस रूहानी हालत के अंदर मजबूती लाने के लिए खुदा का बंदा कहता है, कोशिश में सुस्ती ना करो। इस रूहानी हालत के अंदर जो कमजोरी आई हुई, इसको दूर करने के लिए फिर से पुरजोश हो जाओ और सुस्ती ना करो और रूहानी जोश में भरे रहो और खुदावंद की खिदमत करते रहो। रूहानी जोश जो है वो इन ईंटों को मुकम्मल करता है, उन ईंटों को मजबूती देता है। जिस तरह गारा या सीमेंट ईंटों को लगाने के वसीला से मजबूत करता है, रूहानी जोश जो है वो उन रद्दों को और उन ईंटों को जो उस इमारत के अंदर दीवार खड़ी की जा रही है उसको मजबूत करने के लिए रूहानी जोश काम आता है। तो खुदा का बंदा कहता है उसमें सुस्ती ना करो।
किसी दुनियावी काम में सुस्ती कर लो, काहली कर लो, लेकिन रूहानी जोश के अंदर कभी सुस्ती ना करो और खुदावंद की खिदमत करते रहो। खुदावंद की खिदमत करने के लिए रूहानी जोश कभी कम नहीं होना चाहिए, जो कि हम देखते हैं कि हमारी बहन भाइयों की अंदर से रूहानी जोश थोड़ा वीक नजर आया। लेकिन खुदा का बंदा कहता है उसमें हमें सुस्ती नहीं करनी, हमें उस जोश में बढ़ना है और तरोताज़ा होना है और फिर से जोश के अंदर आकर उसी काम में बढ़ना है। इफ्सियों के खत के अंदर 4 बाब की 23 आयत में लिखा हुआ है, और अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ। अब क्या होता है, अपडेट होते रहो। बाज दफा हम देखते हैं कि जब 6 महीने या 1 साल या 8 महीने या 5 महीने हम अपने डिवाइस को, मोबाइल को अपडेट नहीं करते तो वो स्लो चलना शुरू हो जाता है, वो अटकना शुरू हो जाता है, वो हैंग होना शुरू हो जाता है और बहुत दफा एक ही जगह पर वो काफी देर अटका रहता है। वजह क्या है कि वो अपडेट नहीं हो रहा, उसको अपडेट नहीं किया जा रहा। तो यहां पर भी खुदा का बंदा हमें अपडेट होने के लिए कह रहा है और अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाओ। अब रोज नया कलाम मिलता है। कभी ये तो नहीं हुआ कि जो भाई ने सुनाया मैं भी वही सुना रहा हूं अगले दिन, या जो मैंने सुनाया होता है उससे अगले दिन भाई ऐसा सुना रहा हूं। नया कलाम सुनता है, नया कलाम सुनने को मिलता है। तो खुदा का बंदा कहता है इसी वसीला से अपने आप को, उस रूहानी हालत को नए बनाते जाओ, अपडेट होते रहो। अपडेट होंगे तो सुस्ती नहीं आएगी, अटकेंगे नहीं, स्लो नहीं होंगे और फिर एक जगह पर काफी देर अटक नहीं रहेंगे। अपडेट होंगे तो मुसलसल चलते रहेंगे और रुमानगी से चलते रहेंगे और फिर स्लो मोशन नहीं आएगा। तो करना क्या है, अपनी अकल की रूहानी हालत में नए बनते जाना है। जो हमें अकल कहां से मिल रही है, खुदा के कलाम से। और खुदा का बंदा कहता है हमें किसकी अकल है, मसीह की अकल है। अब लोकल ब्रांड जो होते हैं उनके जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो बड़ी जल्दी खराब होते हैं, लेकिन जो ब्रांडेड होते हैं उनके वारंटी होती है और वो कभी खराब नहीं होते। मोबाइल टूट सकता है, डिवाइस टूट सकती है, एलसीडी टूट सकती है, लेकिन उसका सॉफ्टवेयर जो है वो मसलसल आखिर तक चलता रहता है। अब हम में कौन सा सॉफ्टवेयर है, हमें मसीह की अकल है। हमें क्या करना है, अपनी अकल की रूहानी हालत में नए होते जाना है और जोश को क्या करना है, दोबारा से हासिल करना है, सुस्ती नहीं करनी। और रोमियो के खत में भी 8वें बाब की 6 आयत में लिखा हुआ है, और जिस्मानी नियत मौत है मगर रूहानी नियत जिंदगी और इत्मीनान है। जिस्मानी नियत क्या है, मौत है, मगर रूहानी नियत जिंदगी भी है और इत्मीनान भी है। अब जब हम कलाम को सुनकर इबादत करके प्रस्तुत करने के बाद भी रूहानी हालत के अंदर, रूहानी सोच के अंदर और रूहानी बातों के अंदर परेशान होकर, मुब्तला होकर पड़ जाते हैं, तो फिर ये जिस्मानी नियत हमारे लिए मौत को पैदा करती है, बल्कि हमेशा तैयार रखती है उस मौत के फंदे, क्योंकि कब इसका पैर इसके अंदर आए और मैं रस्सी को खींचूं और इसको दबा लूं, इसको दबोच लूं। मेरे जीजो, अब मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि हमारे लिए रफाकत तो बहुत जरूरी है। जो मुझे खुदा ने बात अता किया है, रफाकत और इबादत करना हम सब के लिए बहुत जरूरी हो चुका है, क्योंकि हम उस रास्ते पर, उस जंग में निकल चुके हैं जिसके अंदर हमें मुसलसल लड़ना है और लड़ने के लिए होश में रहना है, सुस्ती नहीं करनी, अपडेट होते रहना है, अकल नहीं करनी है, सोच नहीं करनी है और इसमें मुसलसल लड़ते रहना है। और अगर इसमें थोड़ी सी भी कमजोरी आ जाती है, थोड़ी सी भी सुस्ती आ जाती है, थोड़ी सी भी जोश कम हो जाता है, तो दुश्मन के पास भी बड़े बड़े हथियार हैं। हमारा हथियार सुस्ती की, कमजोरी और किसी जिस्मानी सोच की वजह से ऐसे नहीं हुआ और उसने अपना हथियार गर्दन पर मारा नहीं है। तो फिर क्या लिखा हुआ है, जिस्मानी नियत क्या है, मौत है। अब रफाकत हमारे लिए बहुत जरूरी है, लेकिन अगर मैं इस नतीजे पर पहुंच रहा हूं कि जिंदगी अगर साथ ना दे और मिसाल के तौर पर मैं ही नहीं हूं,
मैं नहीं रहता आपके दरमियान और मैं ही आपके दरमियान कलाम सुनाने के लिए नहीं आता, या जिंदगी का जो एक सच्चाई है, तलब हकीकत है कि अगर मौत भी आ जाती है मैं नहीं रहता, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप रूहानी हालत के अंदर कमज़ोर हो जाएं, आप ढीले ढाले हो जाएं, आप सुस्ती कर जाएं, अपने जोश को कम कर दें और आप कमज़ोर हो जाएं। क्योंकि लिखा क्या है 9वीं आयत के अंदर, क्योंकि हम खुदा के साथ काम करने वाले हैं। हम क्या हैं? खुदा के साथ काम करने वाले हैं, और तुम खुदा की खेती और खुदा की इमारत हो। अब अगर तुम ढीले पड़ जाते हो, तुम सुस्त हो जाते हो, तुम कमजोर हो जाते हो, तो खुदा की इमारत की तामीर जो है वो ढीली पड़ जाती है, वो कमजोर हो जाती है, रुक जाती है। अब करना क्या है कि कोई भी वजह हो सकती है उसकी कि मैं आपके दरमियान ना रहूं, उसकी वजह कोई भी हो सकती है। मौत की हालत हो सकती है, और दुनिया के कोई खदोखाल हो सकते हैं, और कोई ऐसे मामला हो सकते हैं कि जिसकी वजह से मैं शायद यहाँ पर कायम ना रह सकूं। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को खाली कर दें, आप ढीले हो जाएं, आप सुस्त हो जाएं, आप कमजोर हो जाएं। वजह क्या है कि आपकी वजह से खुदा की इमारत कायम हो रही है, खुदा की वो बिल्डिंग जो है वो आपकी वजह से बन रही है। तो तमीर का काम रोकना नहीं है, खा कुछ भी हो जाए, कोई भी ना रहे, मैं ना हो, कोई ना हो, कोई कैसा भी मसला आ जाए, आपकी तमीर का काम नहीं रुकना चाहिए। आपका जो सीमेंट है वो इसी तरह लगता जाना चाहिए, ईंटें जुड़ती जानी चाहिए। और फिर मेरे जीजो, अगर हम कलाम को सुन रहे हैं कि तुम खुदा की खेती और खुदा की इमारत हो, इसके अंदर ये मुकाशफा है कि जिस तरह कलाम अक़दस में सुनने को मिला कि हम जो हैं, कलीसिया क्या है? यीशु मसीह का बदन है। और यीशु मसीह का बदन कैसे तरक्की करेगा? अगर इसके अंदर हम जुड़ते जाएंगे और मजबूत होते जाएंगे। अब अगर एक दीवार बन रही है और उसके अंदर 10,000 ईंटें लगती हैं, तो तब भी काम रुक जाता है जब नई ईंटें हम मंगवाएं ना, या नई ईंटें खरीदे ना, तब भी काम रुक जाता है। हम तो मसलसल आप रद्दे रख रहे हैं, मसलसल आप सीमेंट लगा रहे हैं, लेकिन तब भी काम रुक जाएगा जब नई ईंटें हमें मैसर नहीं आएंगी। अब नई ईंटें हासिल करने का तरीका क्या है? नई ईंटें लाने का तरीका क्या है? और वो लिखा हुआ है, जैसे हमने शुरू में देखा है, लिखा है रोमियो के खत के अंदर 15 बाब के अंदर हमने पढ़ा, बस जिस तरह मसीह ने खुदा के जलाल के लिए तुमको अपने साथ शामिल कर लिया है, उसी तरह तुम भी एक दूसरे को शामिल कर लो। नई ईंटें मंगवा लो, नई ईंटें ले आओ, तो ये तमीर, ये दीवार का काम नहीं रुकेगा। अब मेरे जीजो, पहले ग्रंथियों के खत के अंदर 14 बाब की पहली आयत के अंदर लिखा हुआ है, 14 बाब उसकी पहली आयत, मोहब्बत के तालिब रहो और रूहानी नेमतों की भी आरजू रखो। इस काम को तरक्की देने के लिए, इस काम को तेज करने के लिए, इस काम को मजबूत करने के लिए और तेज दिन और रात मेहनत करके ज्यादा अच्छे तरीके से और तेजी से करने के लिए क्या करना है? रूहानी नेमतों की भी आरजू रखो। खुसूसन इसकी नबूवत करो जो खुदा के कलाम की वजह से हमें रूहानी हालत के अंदर ये नेमतें मिलती हैं। और आरजू क्या रखनी है, सोचना क्या है, ख्वाहिश क्या करनी है, और इसके बारे में हमेशा कोशिश करती रहनी है कि हमें रूहानी नेमतें खुदा की ज़रूरत से मिल जाएं। और हम नेमतों को हासिल करने के बाद जब पुरजोश होंगे तो फिर ये काम और तेजी से हो सकता है, और तेजी से चल सकता है। और फिर इसी खत के 12वें बाब की पहली आयत में लिखा है, ए भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम रूहानी नेमतों के बारे में बेखबर रहो। मैं नहीं चाहता कि तुम रूहानी नेमतों के बारे में बेखबर रहो। कलाम को सीखते जाएं, प्रस्तुत करते जाएं, साज बजाते जाएं, दुआएं करते जाएं, लेकिन हम आरजू ना करें कि खुदा हमें रूहानी नेमतें दे,
तो फिर इनके बारे में बेखबरी भी हमारे लिए नुकसान का बायस है। कितने लोग हैं जो खुदा की हुजूरी के अंदर अपने लिए, अपनी रूहानी हालत के लिए और अपनी शख्सी जिंदगी के लिए खुदा से कोई ना कोई रूहानी नेमत को मांगते हैं? हाथ खड़ा करके बताएं। सब मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अब ये बताएं कि कितने ऐसे हैं जिनको वो रूहानी नेमत जिसकी उन्होंने आरजू की हुई है वो मिल चुकी है? हालेलुया। अब मेरे जीजो, कमी क्या आ रही है? वही कि हमने क्या करना है, उस चीज को हासिल करना है जिसके वसीला से हम दिन रात इस दीवार को तमीर कर सकते हैं। वो वजह है रूहानी नेमतें। खुदा का बंदा कहता है मैं नहीं चाहता कि तुम इनके बारे में बेखबर रहो। रूहानी नेमतें हमें मिल जाएंगी तो फिर नई ईंटें हम लाएंगे। कैसे लाएंगे? जब हम रूहानी नेमतों को हासिल करके दूसरे बहन भाइयों के पास जाएंगे तो वो ईंटें इस दीवार के अंदर शामिल होंगी, वो इनके अंदर लगेंगी तो ये ज्यादा तेजी से काम होगा। और खुदा का बंदा कहता है इनके बारे में मैं नहीं चाहता कि तुम बेखबर रहो। काफी महीनों से खुदा के फजल से यहाँ पर भाइयों के वसीला से और मेरे वसीला से खुदा ने बहुत सारी बातों को आपके दरमियान शेयर किया और खोल खोल कर कलाम अक़दस में से सच्चाइयों को आपके सामने बयान किया गया। बहुत अरसे से हम सीख रहे हैं, बड़े कलाम की पेचीदगियों को और उन सच्चाइयों और उन गहराइयों को हम सीख चुके हैं, शायद जो और लोगों को सुनने और खोलने के लिए नहीं मिल रही। बड़ा कुछ हम सीख चुके हैं, लेकिन हम में कोई हमेशा कायम नहीं रह सकता। कोई बादशाह है, कोई पैगंबर है, कोई रसूल है, या कोई एमपीए है, कोई एमएनए है, या कोई भी है, या कोई खादम है, या कोई भी ऐसा कलीसिया के अंदर कोई बहन है भाई, कोई सदा और मुकम्मल जिंदगी के लिए कायम नहीं रह सकता। हर एक को अपने अपने काम और अपनी अपनी जिंदगी के अजर के मुताबिक उसके लिए खुदा की हुजूरी में लौटना है। अब इतनी बातें, इतना कलाम सुनने के बाद होना क्या चाहिए कि जोश और हमारी रूहानी हालत जो है वो मजबूत तर होती जानी चाहिए। सुस्ती काहली नहीं आनी चाहिए और हमें दिन ब दिन और जोश में बढ़ते जाना चाहिए। अब तक तो ऐसा होना चाहिए था जिसकी मैं खुदा की हुजूरी से ख्वाहिश कर रहा था, आरज़ूमंद था और सोच रहा था कि अब तक तो ऐसा होना चाहिए था कि बहनों और भाइयों के अंदर, हर किसी के अंदर खुदा की पाक रूह की नेमतों के और पाक रूह की फलों के अंदर से कोई ना कोई फल और कोई ना कोई नेमत हर किसी के पास होनी चाहिए थी। लेकिन मेरे जीजों, मैं ये कहता हूं कि हम में से कोई भी हमेशा तक कायम नहीं रह सकता। बाइबल मुकद्दस के अंदर भी कोई कायम नहीं रहा। कितने कलाम सुनाने वाले आए, कितनी सच्चाइयों को बयान करने वाले आए, कितने लोग आए और सभी अपने अपने वक्त के मुताबिक चलते जाते, सब जाते रहे। लेकिन एक काम ऐसा है जो कभी नहीं बदलेगा और नहीं टूटेगा। हम अपना अपना काम अपनी अपनी बारी से करके चले जाएंगे, लेकिन खुदा का कलाम और उसकी बातें और उसकी हुजूरी और उसके रूह का काम जो है, उसकी तमीर का काम जो है, वो कभी खत्म नहीं होगा। अपना अपना हर कोई हिस्सा, अपने अपने हिस्से की हर कोई ईंटें उस दीवार के अंदर लगाता जाएगा। जितनी उसको खुदा ने तौफीक दी है उतनी ईंटें उस दीवार के अंदर शामिल करके चीन के उसके अंदर लगाकर अपना हिस्सा पूरा करने के बाद चला जाएगा। लेकिन खुदा की तमीर और उसकी इमारत का काम, तमीर का, कभी रुकेगा नहीं। ये मत ख्याल करें कि फलां बंदा नहीं आएगा या फलां बंदा नहीं होगा तो मसला बन जाएगा, तमीर रुक जाएगी, काम रुक जाएगा, इबादत नहीं होगी, परस्तिश नहीं होगी, ढोलक नहीं सही बजेगी। कुछ भी नहीं ऐसा होता, क्योंकि ये बातें खुदा अपने काम के लिए, अपनी मुनादी के लिए, अपनी इबादत के लिए, अपनी परस्तिश के लिए एक के बाद दूसरे को और दूसरे के बाद तीसरे को खड़ा कर देता है। बाइबल मुकद्दस के अंदर भी ऐसा ही हुआ। साउल सही तरीके से खुदा की हुजूरी में नहीं चला तो खुदा ने दाऊद को खड़ा कर दिया, दाऊद के बाद उसके बेटे को खड़ा कर दिया, सुलेमान के बाद औरों को खड़ा कर दिया। जैसे जैसे वो अपना अपना काम करते गए हैं, उनकी जगह और आते गए हैं। और
समंदर के अंदर या नहर के अंदर एक वक्त में मुसलसल लगातार एक ही पानी सालों के साल नहीं ठहर सकता। वो बदलता रहता है, वो आता रहता है, वो जाता रहता है। लेकिन खुदा अपने कलाम को और अपनी बातों को हर किसी के वसीला से उसके वक्त के मुताबिक लेता रहता है और अगलों को कायम करता रहता है। रफाकत, मेल मिलाप, मोहब्बत और यगानगत और सच्चाइयाँ जो हम सुन रहे हैं और सीख रहे हैं, और ये रफाकत और ये मोहब्बत और ये यगानगत और एक दूसरे की कदर और एक दूसरे की इज्जत जो है, ये टूट सकती है, ये ख़त्म हो सकती है, ये फ़ानी है, ये जा सकती है, ये हम में से निकल सकती है। लेकिन तमीर का काम जो है वो नहीं रुकेगा। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, उसकी वजह कुछ भी हो, लेकिन तमीर का काम खुदा कभी भी नहीं रोकेगा। खुदा अपनी तमीर का काम करता जाएगा। शागिर्द परेशान हैं, आंसू बहा रहे हैं और कहते हैं कि नहीं भाई पलूस तू ना जाई, उथे ते तू वापस ही नहीं होना, उथे ते तू मारी जाना है, उथे ते तेरा सिलसिले खत्म हो जाना है। ते ही नहीं चाहते कि अंजो ने कहा नहीं, जिन्ना मेरा हिस्सा, जिन्ना मेरा काम खुदा ने मेरे को लेना सी ले लिया, लेकिन मैं उथे जावांगा, जरूर जावांगा, उथे मैं अपना काम करके आना, जी मेरी ख्वाहिश सी वो मैं काम करके आवांगा। उस तो बाद खुदा दी मर्जी है मैं आना कि नहीं। और मेरे अज़ीज़ों, खुदा का मंसूबा कायम रहता है। हम आते जाते रहेंगे, हमारी जिंदगियां ऐसे आपस में बातें करते रहेंगे, बातें खत्म हो जाएंगी, रफाकतें खत्म हो जाएंगी, सारा कुछ होगा, लेकिन खुदा का मंसूबा जो तमीर का है, उसी इमारत को बनाने का है और मसीह के बदन को जलाल देने का है और मसीह के बदन को मुकम्मल करने का है, वो नहीं रुक सकता। ना किसी की बातों की वजह से रुक सकता है, ना किसी के जाने की वजह से रुक सकता है, और ना किसी के मर जाने की वजह से हो सकता है, और ना किसी के कोई ऐसा काम करने से रोक सकता है, बल्कि खुदा का काम इसी तरह होता रहेगा और उसने करना है, और उसने इमारत को मुकम्मल करना है और तमीर के काम को मुकम्मल करना है। खा वो किसी से भी करे, किसी को भी इस्तेमाल करे, उस दीवार पर रद्दा रखने के लिए किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। तो ये काम नहीं रुक सकता। हमारी सोचें, हमारे ख्याल, हमारी बातें और हमारे आने जाने तमाम रुक सकता है, लेकिन खुदा का काम कभी नहीं रुक सकता, क्योंकि लिखा हुआ है कलाम 1:10 के अंदर, फूल मुरझा जाएगा, घास सूख जाएगी, लेकिन खुदा का कलाम अब तक कायम रहेगा। आमीन। आए आंखों को बंद करें और सरों को झुकाकर खुदा की हुजूरी से अपने लिए जोश, दलेरी, कुव्वत, बहाली और मसा को, खुदा के रूह को और रूह के फलों को और नेमतों को मांगते हैं, ताकि खुदा की तमीर का काम ना रुके और हमेशा मुसलसल दिन और रात चलता रहे और ये इमारत तमीर होकर खुदा का बेटा दुनिया में आ जाए। हालेलुया। सब दुआ करेंगे, सब जो तौफीक हमें खुदा ने दी हुई है। शुक्र गुजारी करते आज की इबादत के लिए, खुदा इस शाम के लिए जो खुदा ये शाम हमारी बख्श दी, खुदा आसमानी खुदा जिंदगी और सांसों के लिए तेरी शुक्र गुजारी करते हैं खुदा, जो आज तूने जिंदगी बख्शी और हम खुदावंद तेरी बख्शी हुई जिंदगी में से इस वक्त को खुदावंद तेरे लिए खुदावंद जो हमने मुकर्रर किया था, तेरे हुजूरी में झुके और तेरे नाम को सजदा और तेरे मुबारक कहा, तो हम तेरी शुक्र गुजारी करते हैं आज की परस्तिश के लिए जो खुदावंद ने हमें जोर कुव्वत बख्शी और खुदावंद आज का जो जिंदगी बख्शी कलाम से जोश यीशु के मसीह के नाम से जो तूने हमारी जिंदगियों के लिए खुदावंद अपने बंदा के वसीले से किया, तो देख आसमानी खुदा वो आज कलाम और रूखी उस बदन की तमीर के लिए है जो मसीह के बदन की तमीर का काम है, तो देख खुदा उस काम के लिए तेरी दलेरी चाहते हैं खुदा, पाक रूह का जोर मांग लेते हैं खुदा आसमानी खुदा। हम कमजोर हैं मगर खुदावन जब तू हमारे साथ है तो हम जोरावर हो जाते हैं खुदा, हम तेरे जोर को मांगते हैं खुदावंद, तेरी कुव्वत तेरी दलेरी मांग लेते हैं आसमानी खुदा। अपनी सोचे नहीं बल्कि तेरी सोचे आए खुदावंद, तेरा मसा तेरा रूह खुदावंद हमें संभाले खुदावंद, हम तेरी शुक्र गुजारी यीशु के नाम में हम तेरी शुक्र गुजारी करते हैं खुदावंद। कलीसियाई तरक्की के लिए खुदावंद तेरे हुजूर मिन्नत करते हैं खुदा।